Hi all the students. Today we are going to study about the second chapter in highway engineering and subject code is 22302. Second chapter is geometric design of highway. So let me start with this chapter. So in first chapter what we have studied the scope of highways, importance of highway, then classification of highway, various types of highways, how we are going to classify that highway, then alignment of the road, classification of the urban road, etc., and which are drawing we require while or before construction of road. So in second chapter what we are going to study in a geometric design of highway. So we are going to study the various terms used in a highway, like a camber. In a camber we are going to see the definition of camber, purpose of camber, type as per IRC recommendation. Then we are going to see the curve, road margin, road formation, right of way. Then third one is a design speed and the various factor affecting a design speed as per IRC recommendation. Then fourth point is gradient, definition of gradient, type of gradient as per IRC recommendation. Then we are going to see the side distance, that is very important. The definition of side distance, the type of side distance, and IRC recommendation for side distance. Also the sums is going to come on this. So we are going to see sums also. 2.6. Then we are going to see the curve, necessity of curve, type of curve, that is the horizontal curve and the vertical curve. The 7 point is the widening of road, that is on that we are going to see the type of widening and also the problem based on widening of road. Then we have a super elevation. We have definition. We are going to study definition, formula for calculating a minimum and maximum super elevation, and also the method of providing super elevation. Then the standard cross section of national highway and embankment and cutting. So this all contain we are going to see in a second chapter. Second chapter is very important since it is of 16 marks. So in total we are going to study a 9 topic in this chapter. So let's go by one. First, what is a camber? Camber, it is a slope of a road surface joining the ground to an edge, is known as a camber. As you can see in the diagram, कैम्बर क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है डायग्राम में. कैम्बर किसे बोलते हैं? कैम्बर क्या, ये एक स्लोप है. अब ये स्लोप है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी तो ज्वाइन करेगा. सबसे पहले किसे ज्वाइन करता है? तो सेंटर ऑफ क्राउन को ज्वाइन करता है. और कहाँ तक जाता है? वो एज तक जाता है. तो ये दोनों के बीच का जो स्लोप रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो एक कैम्बर रहता है. कैम्बर कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? तो कैरिएज वे पे प्रोवाइड किया जाता है. आप लोग देख सकते हो कैरिएज वे पे हम लोग ने क्या प्रोवाइड किया है? कैम्बर. सो हम लोग को ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है जिस पे रोड सरफेस दिखाना है. शोल्डर्स ऑब्वियसली दोनों साइड में रहेगा और फिर बीच में कैरिएज वे रहता है. कैरिएज वे पे हम लोग क्या करते हैं? कैम्बर प्रोवाइड करते हैं. पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग, अब ये स्लोप प्रोवाइड क्यों करना चाहिए? और स्लोप दोनों साइड पे प्रोवाइड करते हैं. डिवाइडर से फिर दोनों साइड पे स्लोप जाता है. क्यों प्रोवाइड करना चाहिए? सबसे पहले तो स्लोप इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका पानी, बारिश के वक्त पानी रोड पे जमा नहीं होना चाहिए, वो जाना चाहिए ड्रेनेज थ्रू. इसलिए क्या करते हैं हम लोग? स्लोप प्रोवाइड करते हैं. द ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैरेज वे टूवर्ड्स द रोड साइड. फिर सेकेंड पॉइंट क्या है? टू रेगुलेट द व्हीकल टू द प्रॉपर लेन. इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स या नॉन प्रॉपर प्लानिंग की वजह से क्या होता है, आप लोग का रोड जो है वो प्रॉपर नहीं बनता. तो वो प्रॉपर वगैरह बनाने के लिए स्लोप वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कैम्बर प्रोवाइड करते हैं. टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द रोड, ऑब्वियसली रात के वक्त इवन रिफ्लेक्शन वगैरह भी हम लोग देख सकते हैं. बिकॉज ऑफ स्लो क्या होता है? रिफ्लेक्शन वगैरह भी होता है. इवन अपीयरेंस भी कैसे रहता है? अच्छा रहता है. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है
सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस यही है, हम लोग कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि पानी, बारिश का पानी रोड के ऊपर नहीं रहना चाहिए, वो ड्रेन ऑफ होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम मतलब साइड गटर तक। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लोप प्रोवाइड करते हैं, और वो स्लोप को हम लोग कैम्बर बोलते हैं। ओके, टाइप ऑफ कैम्बर, कितने टाइप के कैम्बर है तो आप देख सकते हो 4 टाइप के कैम्बर होते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेट कैम्बर रहता है, बाद में पैराबोलिक या फिर इलेप्टिकल कैम्बर रहता है, बाद में कंपोजिट कैम्बर रहेगा और बैरियर कैम्बर रहेगा। तो हर एक के बारे में देखते हैं। स्ट्रेट कैम्बर क्या रहेगा, पैराबोलिक क्या रहेगा, कंपोजिट और बैरियर क्या रहेगा। आप देख सकते हो उसके रिलेटेड डायग्राम है। सबसे पहले स्ट्रेट, उसके रिलेटेड सबसे पहले तो स्ट्रेट कैम्बर के बारे में देखते हैं। स्ट्रेट मतलब आप लोग देख सकते हो स्ट्रेट है, उस पर कोई कर्व वगैरह नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एज से लेके आखिरी क्राउन तक वो स्ट्रेट ही है, कोई कर्व प्रोवाइड नहीं किया, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट कैम्बर। वही अगर पैराबोलिक और इलेप्टिकल कैम्बर जाओगे तो कैसे रहता है, स्टेप टू स्टेप आपको क्या करना रहता है, कर्व प्रोवाइड करना रहता है। अभी कर्व आप डायरेक्टली पूरे सरफेस के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, ऑफसेट मार्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0.97x पे ऑफसेट है, बाद में 0.89x पे ऑफसेट है, बाद में 0.75x पे ऑफसेट है। ऐसा ऑफसेट मार्क करते करते बाद में क्या करते हैं, हम लोग कर्व को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, इवन आपका रोड है वो प्रॉपर डिज़ाइन भी हो जाता है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी ईजी रहता है, और जो भी कर्व वगैरह है वो प्रॉपर प्लेस भी होता है। बाद में क्या रहेगा, कंपोजिट कैम्बर। कंपोजिट कैम्बर मतलब क्या रहेगा, आजू बाजू में तुम लोग देख सकते हो स्ट्रेट कैम्बर रहता है, और सेंटर में पैराबोलिक या फिर सर्कुलर कैम्बर आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट कैम्बर। और लास्ट में क्या रहता है आपका, बैरियर कैम्बर। बैरियर कैम्बर भी तुम लोग देख सकते हो कैसा है, इसका डायग्राम आता है ड्रॉ करने के लिए। एजेस पे रहेगा वो ज़्यादा स्लोप प्रोवाइड करते हैं, और सेंटर पे भी एक हल्का सा स्लोप रहता है, और बीच में कैसे रहेगा, स्ट्रेट रहता है। तो दिस ऑल इज़ अ टाइप ऑफ अ कैम्बर। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता ही है कैम्बर का। ठीक है, तो ये सब हो गया कैम्बर, पर्पस ऑफ कैम्बर एंड डेफिनेशन ऑफ कैम्बर। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ हाईवे। एलिमेंट्स ऑफ हाईवे मतलब क्या, जैसे कि अपने बॉडी में आप लोग देख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ बॉडी आपके कौन से रहेंगे, जैसे कि नोज़ रहता है, माउथ रहता है, स्किन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही हाईवे पे भी क्या रहता है, बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, तो कौन से एलिमेंट जॉइन करने के बाद अपना हाईवे कंस्ट्रक्ट होता है, तो आप देख सकते हो उसके ऊपर तुम लोग क्या क्या दिखेगा। सबसे पहले तो सबट्रैक्टर दिखता है, दैट इज़ अ डिवाइडर, कर्व दिखता है, रोड मार्जिन रहता है, रोड फॉर्मेशन रहता है, राइट ऑफ वे रहता है। अभी स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक क्या क्या रहता है। सबसे पहले देखते हैं सबट्रैक्टर क्या रहता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सबट्रैक्टर इज टू प्रोवाइड द कोलिजन बिटवीन द टू व्हीकल मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन द एडजेसेंट लेन। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो व्हीकल आते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में कुछ ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जिससे क्या होगा, डिवाइडर फॉर्म होगा और एक दूसरे से वो कोलिड ना हो सके। ठीक है, द सबट्रैक्टर मे बी इन द फॉर्म ऑफ द पेवमेंट मार्किंग, फिजिकल डिवाइडर और एरिया सबट्रैक्टर। द पेवमेंट मार्किंग आर द सिंपल एंड द चीपर। अभी तुमने देखा रहेगा डिवाइडर सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही नहीं रहता, इवन कितनी बार तो हम लोग सिर्फ मार्क कर लेते हैं, तो मार्क करने से भी वो एज अ डिवाइडर ही हम लोग कंसिडर करते हैं। कितनी बार तो वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, या फिर हम लोग कितनी बार तो वहाँ पे क्या करते हैं, कर्व वगैरह प्रोवाइड कर लेते हैं। दैट इज़ दैट इज़ येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप वाला हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डिवाइडर दिखे। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइडर मार्क कर सकते हैं। The mechanical subtractor should be designed in such a way that even if the wheels of the vehicle encroach on it, but no damage should be done to a vehicle। कितनी बार क्या होता है, डिवाइडर पे बहुत सारे व्हीकल को टकराते सॉरी या फिर कोलाइड हो जाते हैं, तो तभी आपके व्हीकल को ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए, तो ऐसे आप लोग को डिवाइडर प्रोवाइड करना है। जैसे कि अगर विड्थ बहुत ही कम है आपके रोड का, तो आप लोग डिवाइडर मार्किंग का प्रोवाइड कर सकते हो, सिर्फ आप लोग उसे वहाँ पे मार्क कर सकते हो, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, अगर ओवरटेक वगैरह भी कभी करना होगा तो आपके व्हीकल को कोई डैमेज नहीं होगा।
ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अ कर्व। कर्व मतलब क्या रहता है, तुम लोग ने देखा रहेगा ब्लैक एंड येलो डिवाइडर मार्क किया हुआ रहता है। ब्लैक और ये येलो किसके ऊपर मार्क किया हुआ रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व। इतना नहीं, सिर्फ डिवाइडर पे ही नहीं रहता, इवन अगर तुम लोग एजेस पे भी देखोगे जहाँ पे गटर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे फुटपाथ वगैरह ऊपर रहता है, उसके नीचे अगर तुम लोग देखोगे तो कभी कभी येलो ब्लैक मार्किंग रहता है, तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो योर कर्व। तो कर्व क्या रहता है, द कर्व इंडिकेट्स अ बाउंड्री बिटवीन द पेमेंट्स एंड द शोल्डर्स। कर्व मार्किंग रहता है, किसके बीच में रहता है, दोनों पेमेंट के बीच में रहता है, या फिर पेमेंट और शोल्डर के बीच में रहता है। द कर्व में भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। अभी कर्व भी बहुत ही अलग अलग टाइप के रहते हैं। सबसे पहले तो लो कर्व रहेगा। लो कर्व नाम से ही पता चलता है उसका हाइट क्या रहेगा, कम रहेगा। कितना है, 7 to 8 सेंटीमीटर। अब ये वाले कर्व कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, द व्हीकल कैन क्लैम इजीली ऑन इट, मतलब इजीली आप उसे ऊपर, अपना व्हीकल उसके ऊपर से लेके जा सकते हो। या फिर दे कैन ऑल्सो यूज़फुल फॉर द लॉन्जिट्यूडनल ड्रेनेज। साइड पे जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह रहता है वहाँ पे बहुत बार हम लोग क्या देखते हैं, ये वाला कर्व देखते हैं। देन अर्बन पार्किंग कर्व। अभी अर्बन पार्किंग है, पार्किंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, इससे पता चल जाता है ये कितने हाइट का रहता है, तो 15 से 20 सेंटीमीटर के हाइट का रहता है। दिस टाइप ऑफ अ कर्व prevent the encroachment of the footpath or a parking space by slow moving vehicle। आप लोग ने देखा रहेगा बहुत बार दादर स्टेशन के बाहर या फिर भाईंदर वेस्ट में ही देखा रहेगा, जो ऑटो रिक्शाज वगैरह रहते हैं उसके बीच में, ऑटो रिक्शाज को बीच में डिवाइड करने का काम आपका पार्किंग कर्व करता है, जिससे क्या हो सके कि आपका व्हीकल जो है वो पार्किंग कर्व के बीच में ही पार्क हो या फिर उसके बीच में ही ट्रैवल हो सके, ऐसे रहता है। High speed barrier, they are 25 to 45 centimeter height and used in the hilly roads or on a bridges, do not allow the vehicle to leave the pavement। आप लोग ने देखा रहेगा हाई स्पीड बैरियर कर्व कहाँ पे रहता है, तो जब भी आप माउंटेन साइड पे कभी ट्रैवल किया रहेगा विद हाईवेज, तो देखा रहेगा जहाँ पे वैली साइड है, वैली साइड के वहाँ पे ही आपको वाइट एंड ब्लैक कलर का मार्किंग रहता है, तो वो वाले भी कर्व रहते हैं। वो कर्व का काम क्या है, आपको नीचे गिरने नहीं देना, प्रिवेंट करना, तो हाई स्पीड बैरियर कर्व वो रहता है। ऐसे 3 टाइप के आपके कर्व रहते हैं, आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मेन ये वाला डायग्राम है, पेमेंट है, बीच में सब्ट्रैक्टर है, फिर से यहाँ पे पेमेंट है, और ये फुटपाथ है, फुटपाथ के भी और पेमेंट के बीच में भी फिर से क्या है, कर्व है। कर्व के ये सारे टाइप हैं, ये सारे डिज़ाइन में कर्व मिलते हैं या फिर मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अब तक हम लोग ने 2 देखा, दैट इज़ कैम्बर और कर्व। अभी हम लोग क्या देखेंगे, रोड मार्जिन। अभी रोड मार्जिन का मतलब क्या हुआ, मार्जिन मतलब ऑब्वियसली जो साइड पे रहता है। अभी रोड के साइड पे क्या क्या रहता है, तो सबसे पहले तो क्या रहेगा, आपका शोल्डर्स रहता है, दे आर प्रोवाइडेड अलॉन्ग द एजेस ऑफ द पेमेंट ऑन बोथ द साइड। ऑब्वियसली दोनों साइड पे आप देख सकते हैं शोल्डर प्रोवाइड किया रहता है। शोल्डर ऑल्सो सर्विस हैज़ एन इमरजेंसी लेन फॉर अ डैमेज व्हीकल। आपने देखा रहेगा एक्सप्रेस हाईवे पे आपको बीच में रुकना अलाउड नहीं है, तो तभी आप क्या करते हो, रोड के जो साइड का पार्ट है वहाँ पे अगर बाई चांस आपको रुकना रहेगा, इमरजेंसी रुकना रहेगा या फिर आपका एक्सीडेंट वगैरह रहेगा, तो आप वहाँ पे आपका व्हीकल खड़ा कर सकते हो या फिर रोक सकते हो, तो इसलिए शोल्डर्स बहुत बार काम आते हैं। एज़ पर IRC स्पेसिफिकेशन द मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर शुड नॉट बी लेस देन 2.5 मीटर। कितने कम नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए, 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, अपने IRC ने बताया गया है। बाद में क्या रहता है, मार्जिन के ऊपर तो पार्किंग लेन रहता है। पार्किंग लेन शुड हैव अ सफिशेंट विड्थ ऑफ 3 मीटर्स। कितने मीटर का पार्किंग होना चाहिए, तो 3 मीटर का पार्किंग विड्थ होना चाहिए। पैरेलल पार्किंग शुड बी अवॉइडेड हैज़ इट इज़ safer to parallel parking should be allowed as it is safe to drive। हाँ ऑब्वियसली पैरेलल पार्किंग में ही सबसे कम जगह लगता है। अगर आप रोड के मार्जिन में प्रोवाइड कर रहे हो तो यू शुड प्रेफर पैरेलल पार्किंग ओनली। पैरेलल पार्किंग, ओके। साइकिल ट्रैक्स आर प्रोवाइडेड इफ द साइकिल ट्रैफिक इज़ वेरी हाई ऑन द रोड।
द मिनिमम विड्थ ऑफ साइकिल ट्रैक शुड बी लेस देन 2 मीटर। ऑब्वियसली साइकिल ट्रैक के लिए ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं हम लोग को, 2 मीटर से कम रहेगा फिर भी चलेगा। और साइकिल ट्रैक कहाँ पे भी नहीं बनाते, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। देन फुटपाथ इन द अर्बन एरियाज विच where the vehicle as well as a pedestrian traffic is very high, the footpath are provided। जैसे कि अपने एरिया में देखो, नवगढ़ रोड पे ही देख लो, इवन बच्चे लोग चलते भी ज़्यादा है, चल के आते जाते भी, इवन हम लोग कितनी बार ऑटो भी कैरी करते हैं। तो ऑब्वियसली ऑटो के लिए भी जगह होना चाहिए, इवन अपने आने जाने के लिए भी जगह होना चाहिए। तो ऐसे जगह पे हम लोग क्या करते हैं, फुटपाथ प्रोवाइड करते हैं। देन द लास्ट वन इज़ अ गार्ड रेड। They are provided if the highways is constructed on the embankment higher than 3 meter to prevent the vehicle from running off the pavement। गार्ड कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो ब्रिजेस, जहाँ पे ब्रिज वगैरह रहता है तो आपका व्हीकल नीचे गिरना नहीं चाहिए, इसलिए आजू बाजू में आप देख सकते हो रेलिंग प्रोवाइड किया रहता है, तो दैट इज़ अ गार्ड रेल। तो इस तरह से रोड मार्जिन में इतने सारे एलिमेंट्स रहते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ अ रोड फॉर्मेशन। रोड फॉर्मेशन मतलब क्या रहता है, रोड बनाते कैसे। तो रोड फॉर्मेशन में सबसे सेंटर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या रहता है, उसका कैरेज वे रहता है, जो कि रोड जिसके ऊपर व्हीकल चलता है। उसके बाद आजू बाजू में शोल्डर्स आ जाते हैं, और शोल्डर और कैरेज वे मिला के रोड वे बनता है। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद रोड मार्जिन रहता है। रोड मार्जिन में कौन से एलिमेंट्स रहते हैं वो हम लोग ने अभी देखा। उसके बाद क्या रहता है, आपका रोड लेंथ बाउंड्री रहता है, मतलब यहाँ तक कि आपके रोड का लेंथ का बाउंड्री है। फिर आगे जो रहता है दैट इज़ अ बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन मतलब यहाँ तक अगर आगे जाके फ्यूचर में अगर तुम लोग कंस्ट्रक्ट करना है और विड्थ इंक्रीज़ करना है तो आप लोग कर सकते हो टिल द बिल्डिंग लाइन, एंड बाद में कंट्रोल लाइन। इसके आगे आप लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इतना ही आपका क्या रहता है, विड्थ रहता है। तो और ये वाला जो रहता है वो किस में रहता है, रोड फॉर्मेशन एंड एम्बांकमेंट। एम्बांकमेंट मतलब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या रहता है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही कॉर्नर पे प्रोवाइड किया हुआ रहता है। स्लोप के बाद में कॉर्नर पे साइड ड्रेनेज प्रोवाइड किया रहता है। वैसे ही रोड फॉर्मेशन इन कटिंग में भी रहता है। कटिंग मतलब क्या रहता है, आपका रोड ग्राउंड लेवल से नीचे रहता है, एक्चुअली नीचे नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है, ऑब्वियसली रोड को थोड़ा ऊपर उठाना ही रहता है, नहीं तो पानी पूरा कलेक्ट हो जाता है। इसलिए आप लोग देख सकते हो कैरेज वे सेम है, शोल्डर आजू बाजू में प्रोवाइड किया है, और ये दोनों को मिलके क्या हो गया आपका रोड वे। लेकिन अगर आप इसके तुरंत ही बाद देखोगे तो क्या हो जाता है, आपका साइड ड्रेनेज आ जाता है। साइड ड्रेन आने के बाद आप लोग देख सकते हो वहाँ पे रोड मार्जिन प्रोवाइड किया हुआ रहता है। ऐसे क्यों प्रोवाइड किया है, ताकि आपका जो भी पानी है आजू बाजू के एरिया से आपके डायरेक्ट रोड पे नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग बीच में क्या प्रोवाइड करते हैं, साइड ड्रेन प्रोवाइड करते हैं। वही अगर तुम एम्बांकमेंट में देखोगे तो साइड पे तो कोई रोड है ही नहीं, मतलब कोई भी ग्राउंड उससे ऊपर के लेवल पे नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, साइड ड्रेन बहुत ही बाद में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कटिंग में साइड ड्रेन क्या करते हैं, वो शोल्डर के बाद में ही प्रोवाइड करते हैं, ताकि पानी आपके रोड पे नहीं आना चाहिए। बाकी के एलिमेंट सेम है जैसे आपके एम्बांकमेंट में है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोड फॉर्मेशन विड्थ इन कटिंग, और इसको क्या है, रोड फॉर्मेशन विड्थ इन एम्बांकमेंट। एम्बांकमेंट करना मतलब ऊपर उठाना। ऊपर रोड को कैसे उठाते हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ फिलिंग ऑफ द अर्थवर्क को हम लोग फील करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, अर्थ को ऊपर उठाते। वही कटिंग में भी हम लोग रोड को थोड़ा ऊपर ही लेते, लेकिन साइड से अगर तुम लोग देखोगे तो ग्राउंड लेवल रोड लेवल से ऊपर रहता है। तो ये पार्ट में सिर्फ इतना ही, बाकी का सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।